Good morning, student. Hello, good morning, student. Dear student, today I am just going to starting new chapter of Hornbill, The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkiwala. The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. The issues that Nani Palkiwala raised regarding the decline health of the earth continue to have relevance. One cannot recall any moment in the world history which has gripped the imaginations of the entire human race of completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. 25 years ago, in 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in the New Zealand. Since then, the movement has not looked back. Great class hold Green movement. It is a movement which states people followed environmentally friendly practice. The chapter The Ailing Planet. The Green Movement rule was an article published on newspaper The Indian Express on November 24, 1994, written by Nani Palkiwala. He wrote about the decline health condition of the earth. Here, the Green Movement, which started nearly 25 years ago, from 1994, spread so quickly in world history. The world's first nationwide Green Movement party was founded in New Zealand in 1972. We have shifted one hopes irrevocably from the machinist view in a holistic and the ecological view of the world. It is shift in human perception was revolutionary. Was that in view revolutionary was that introduced by the Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism, conscious and enormous being of which we are parts. It has its own metabolic needs and vital process which need to respect and preserved. The world irrevocably in a way that cannot be changed in or reverse. होलिस्टिक वर्ड आया. होलिस्टिक मीन्स होता है होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू. इट मीन्स कि व्यू फॉर द preservation of the environment. It also refer to the understanding of importance of earth's resources for the use of future generations. यहाँ पर जो राइटर है ये कोशिश करता है इस चीज़ का मैसेज देने का कि जो हम अर्थ में जितने भी रिसोर्सेज है, अगर हम उनका सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, तो जो आने वाले फ्यूचर की जो जनरेशन है वो इससे अफेक्टेड होगी. जनरेशन रिवोल्यूशनरी के लिए इन्वॉल्विंग अ कंप्लीट चेंज से कहते हैं. और मेटाबॉलिकल नीड्स मीन्स होता है नीड ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एनेबल देम टू हैव अ केमिकल प्रोसेस दैट कॉज फूड टू बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग एंड एनर्जी. फ्रॉम वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम आवर व्यू हैव शिफ्टेड. समय समय पर हमारे व्यू क्या होते हैं, शिफ्टेड होते हैं. फ्रॉम ग्रीन अर्थ, फ्रॉम सीइंग अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज एज irreversible to complete opposite. We now understand that our resources need to converse for future generation. जो need to converse, जो हमारे जो resources है उनको आवश्यकता है, किस चीज़ की need, resources need to converse for future generation. और Copernicus taught
Copernicus were that taught mankind how the earth and other planet, किस प्रकार से अर्थ और जो अन्य प्लेनेट्स हैं रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन, एंड इट वाज कंप्लीट चेंज विच इन्वॉल्व ह्यूमन परसेप्शन, और कंप्लीट चेंज विच इन्वॉल्व ह्यूमन परसेप्शन। ह्यूमन परसेप्शन का मतलब यहाँ पे मानव के लिए दिया गया, ह्यूमन परसेप्शन रिसोर्सेज को इस तरीके से वी नाउ अंडरस्टैंड दैट आवर रिसोर्सेज नीड टू कन्वर्ट द फ्यूचर जनरेशन के लिए। और कॉपरनिकस टॉट मैनकाइंड हाउ द अर्थ एंड अदर प्लेनेट्स, जो अर्थ है जो अन्य प्लेनेट्स है सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, अराउंड चारों तरफ रिवॉल्व अराउंड द सन, एंड इट वाज अ कंप्लीट चेंज विच इन्वॉल्व ह्यूमन परसेप्शन। नाउ द अर्थ इज सीन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो जोर दे करके जो राइटर कह रहा है कि जो अर्थ है ऐसे दिखती है, इज सीन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ विच वी आर एन कह रहे इंटीग्रल पार्ट, और हम इसके इंटीग्रल पार्ट है। अर्थ हैज इट्स ओन मेटाबॉलिज्म, अर्थ का अपना एक खुद का मेटाबॉलिज्म है, एंड वाइटल नीड्स विच ह्यूमन शुड रिस्पेक्ट एंड परजर्व, और कह रही कि वह बिल्कुल एक ऐसी नीड है इस अर्थ को जो विच ह्यूमन शुड, जो ह्यूमन क्या करे, शुड रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व, अर्थात ह्यूमन बीइंग को भी इस पृथ्वी का प्रोटेक्शन करना चाहिए और इसका संरक्षण करना चाहिए। द अर्थ वाइटल साइन रिवील पेशेंस and decline health, we have begun to raise our ethical obligations on to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy of to future generation के लिए लिखा है, and the concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission of Environment and Development. In its report, it defined the ideas as development that meets the need of the present without commission the ability of the future generation to meet their needs without stepping the natural world of the resources future generation world of need. Here ethical obligation means when someone is required, जब किसी को आवश्यकता होती है to do something based on a right to stand for, और steward में होता है मैनेज, you can manage और to look after देखभाल करने की, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आर्थिक प्रगति होती है विदाउट डिप्लीशन, बिना किसी डिप्लीशन में होता है नष्ट, डिटोरेशन कहते हैं इसको, ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल डिटोरेशन, इसको कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या आर्थिक प्रगति करना बिना किसी क्या जो प्राकृतिक संसाधनों के डिप्लीशन के बिना, डिटोरेशन के बिना, उनको नष्ट किए बिना, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बिना नष्ट किए हुए अपने आप में प्रगति करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अर्थ इज नाउ लाइक अ पेशेंट, कह रहे कि अर्थ अपने आप में एक लाइक अ पेशेंट है, हुज हेल्थ इज डिक्लाइन, जिसकी हेल्थ, राइटर कहने की कोशिश क्या करेगा, ये पृथ्वी अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है, और अब कह रहा है कि वो एक पेशेंट की तरह है जिसको आवश्यकता है क्या, कह रहे कि हुज हेल्थ इज डिक्लाइन, जिसकी हेल्थ खराब है। It means we are using all the natural resources and we are not protecting it, and we as human being, एक human being होने के नाते are now realizing, हम ये महसूस करते हैं our duty to be good managers of the planet, हमको इस planet अर्थ को, हमारी कर्तव्य है, हमारी क्या ड्यूटी है कि इसको हम अच्छी तरह से मैनेज करें, इसको प्रोटेक्शन करें प्लेनेट, एंड टू बी ए रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, और हमको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहिए टू कंजर्व द इन्वायरमेंट को अच्छा के इन्वायरमेंट बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, सो दैट वी कैन पास ए लेगेसी टू द फ्यूचर जनरेशन, ताकि हम आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बना सके।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज was popularized in the year 1987 by the World Commission on Environment and Development in the reports. Sustainable development is termed, ये जो word दिया है, as a type of इस प्रकार का development that means the need of the present generation without wasting or compromising with natural resources. जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें तो उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ ना हो, उसको उनको कम, उनके साथ हमको कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन मीट देयर नीड्स, ताकि आने वाली जो जनरेशन है कह रहा है वो उनकी नीड्स भी क्या हो सके, पूरी हो सके. इन द जू एट लोसाका, Zambia, there is a cage where the notice reads the world's most dangerous animal. Inside the cage there is no कह रहा है कि animal but in mirror where you see yourself, thanks to the efforts of the number of agencies in different countries. A new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized that wisdom of the shifting from the system based on domination to one based और पार्टनरशिप, जिसे कहते हैं पार्टनरशिप. हेयर साइंस कह रहा है साइंटिस्ट हैव कैटलॉग अबाउट 1.4 million living species with which mankind there is the earth estimate was widely as regard the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to be 100 million other living species still कह रहे languish unnamed in the कह रहा है ignominious darkness. यार DAWN डॉल मीन्स होता है बिगिन, स्टार्ट करना, शुरू. कैटलॉग में होता है क्लासिफ, उनको वर्गीकरण करना, क्लासिफिकल, करेक्टराइज करना उनको. और रिकॉर्ड मीन्स होता है कैलकुलेट. लैंग्वेज लूज और लैक ऑफ वाइटलिटी ऑफ अ पर्सन. एंड देन यहाँ इन अ केज केज मीन्स होता है पिंजरा. जू में इन अ केज इन द जू में कह रहा है एक चिड़ियाघर में लुसाका में केज था, उसमें पिंजरे में. जाम्बिया हियर रीड्स द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, उसमें संसार का सबसे खतरनाक एनिमल था. एंड इनसाइड द केज, उस पिंजरे के अंदर इज अ मिरर, उसको क्या लगा रखा था, पिंजरे के अंदर वहाँ पे एक दर्पण, एक मिरर लगा रखा. दैट डिपिक्ट्स दैट ह्यूमन आर द वर्ड्स, और वो इस जब कोई भी उस पिंजरे के अंदर जाता और वो मिरर को देखता था, उसमें अपना चेहरा देखता था, तो उसको ये शो होता था, ये रियलाइज़ करने के लिए कि मनुष्य ही संसार का सबसे डेंजरस क्या है, एनिमल है. क्या कह रहा है कि वो मेरा ये डिपिक्ट करता है दैट ह्यूमंस आर द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, मनुष्य ही इस संसार के सबसे खतरनाक प्राणी हैं. विद द इफेक्ट ऑफ न्यू एजेंसीज इन द वर्ल्ड्स नाउ ह्यूमन आर सीन एज द मोस्ट डेंजरस एनिमल, मनुष्य ही सबसे खतरनाक प्राणी दिखाई दे रहे हैं. दे हैव रियलाइज्ड, उनको ये रियलाइज किया गया दैट इम्पोर्टेंस ऑफ द शिफ्टिंग टू अ न्यू सिस्टम, किस तरीके से न्यू सिस्टम में शिफ्ट होना है बेस्ड ऑन पार्टनरशिप. और ह्यूमन शेयर द अर्थ विद अबाउट 1.4 मिलियंस लिविंग जो स्पीसीज हैं, लगभग 1.4 मिलियन जो लिविंग स्पीसीज है अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंटिस्ट के वर्गीकरण के अनुसार जो उन्होंने एनालाइज किया है. बायोलॉजिस्ट ने कैलकुलेट किया है दैट देयर आर स्टिल, अभी तक मिलियंस ऑफ अदर स्पीसीज, ऐसे मिलियंस अदर अन्य जो प्रजातियां हैं विच आर येट नॉट क्लासिफाइड, जिनको अभी वर्गीकृत नहीं किया गया है, ड्यू टू देयर वीकनेस, उनकी कमजोरी के कारण, और ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज की कमी के कारण अबाउट देम, उनके बारे में हमें क्या है जो नॉलेज नहीं है. डियर स्टूडेंट, you will listen this video carefully and try to understand of this lesson. Thank you.